different tasks. Breaking it down might make things simpler to visualize and maintain. It can help multiple teams to work collaboratively on a large project. In our example, we could designate one team to work on AdventureWorks data flows, and another one to develop the wide word importers ETL without necessarily working on the same package files. Finally, you might want to divide packages for security reasons. Let's say that you have some security-sensitive tasks that you want to allow only certain developers to have access to. The execute package task allows one team to leverage the sensitive tasks without knowing the details of its implementation. You can even pass parameters between the calling package, generally referred to as the parent, and the child package if you need. Now let's see how easy it is to use this task. Sometimes even disabled because I don't want them anymore. It's embarrassing. Let's organize this. I want to create a new package to host the admin tasks, such as backup and check database. So here at the Solution Explorer, I'll right-click the SSS packages and click on New SSS package. I'll rename this one to Admin Tasks. I will also rename my original package to ETL Tasks. Back on my original project, I'll get rid of this Power of 2 container as it was just for a node demo. I will also rename this SMO Connection Manager from a dot to SMO. Because I want to move the backup and check database tasks to another package, I need to convert this SMO Connection Manager to a project connection, like this. Now what I want to do is to copy my backup and check database tasks to the admin tasks package. So let me cut these two tasks here and paste on the new package I created. They are now not connected, so I'll just connect them again, like this. Just to finish my cleanup, let me just go back to the ETL tasks package and just delete this old container and the annotation. So much better, it's looking much cleaner now. Let's test the admin tasks package to see if it's working. I'll go back there, press F5, wait a few seconds, and perfect, everything's working fine. Now here's what I want to do. On my ETL tasks package, I'll drag and drop this execute package task and rename that to backup and check databases. Now double click on it to edit. सर ये आपका माइक म्यूट है। ठीक है, हम ने एक और पैकेज जो है क्रिएट किया, उसको एडमिन टास्क का नाम दिया, पुराने वाले को हमारा। यहाँ से हम ये इसमें ये हमारा नया, तो यहाँ से वो कह रहा है कि ये दोनों उठा के जो है ना, नहीं ये वाला नहीं, ये तो पावर ऑफ 2 का था, सीक्वेंस कंटेनर। ये कौन सा उठा के रख रहा है, वही हम कर लेते हैं। उसने चेक डेटाबेस इंटेग्रिटी और वही नहीं है, ठीक है। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कट पेस्ट कर दिया वहां से उठा के यहाँ पे। अच्छा जी, इसको हम अनडू कर सकते हैं।
यहाँ पे उससे पहले इसने किया था, हमारे पास SMO का है, डॉट का ये था ना, ये SMO का, इसको रीनेम कर रहे हैं SMO और इसको कन्वर्ट कर रहा है प्रोजेक्ट में। ठीक है, अब उठा के ले जाते हैं इसको, देखते हैं ये जा, पहले इसने एरर दी है। अब एरर नहीं दे रहा क्योंकि वो उसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मैं इसको फिर अंडू करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे पड़े हुए हैं, फिर अंडू करते हैं क्या होगा। ये वापस आ गए जो उठा के हमने रखे थे। ठीक है, SMO वाला ये जो प्रोजेक्ट कर दिया, इसका हमने जो बनाया था, ये कनेक्शन है ना, तो यहाँ पे ये हमने जब पहले किए तो वो कनेक्शन सिर्फ पैकेज लेवल का था, उसको हमने अब प्रोजेक्ट में कर दिया। तो ये पैकेज वही कनेक्शन यूज कर लेगा। यहाँ हम अब देख रहे हैं, वहां भी दिखा रहा है। अब इसको उठा के लाते हैं क्योंकि उसने 2 बना दिए थे इसके। काशिफ, बात समझ आई है? जी अब ये सर। रेड साइन भी नहीं दे रहा क्योंकि ये जो है ना कनेक्शन इससे लिंक है। ठीक है, देखा ना, कनेक्शन SMO इसमें यूज हो रहा है। तो बगैर कनेक्शन के जब हमने इस पैकेज में मूव किया तो वो रेड रेड साइन बता रहा था कि भाई इसमें कोई एरर है इस वजह से। ठीक है, अच्छा अब वो आगे क्या बता रहा है कि जी ठीक है, आप यहाँ से And paste on the new package I created. कट They're now not connected, so I'll just connect them again, like this. Just to finish my cleanup, let me just go back to the ETL tasks package and just delete this old container and the annotation. So much better, it's looking much cleaner now. Let's test the admin tasks package to see if it's working. I'll go back there, container and the annotation. ये भी डिलीट कर दिया। इसमें आगे ETL टास्क में ये रखा है सिर्फ, और ये वाला निकाल दिया, इसको हम डिलीट कर देंगे। और दूसरा कौन सा रखा है, जनरेट स्पेस यूटिलाइजेशन रिपोर्ट, सीक्वेंस कंटेन। मेरा ख्याल है हम सेम नाम रखें तो बेहतर है, आपको बाद में फ़ायदा होता है उसका। ठीक है, ये इसको ही कह रहा है स्पेस यूटिलाइजेशन वाला ना, इसमें बता रहा होता है। हाँ, ये टेबल का ना, ठीक है। तो हमने सेम उसकी तरह ही कर दिया, 2 पैकेज बना दिए। ठीक है, उसके बाद वो क्या करे। So much better, it's looking much cleaner now. Let's test the admin tasks package to see if it's working. I'll go back there, press F5, wait a few seconds, and perfect, everything's working. वो हमारे पास यहाँ बैकअप का है ना, ये वाला। तो स्टार्ट जो है, हम सिर्फ इस पैकेज को ही रन करेगा, ये फिर बैकअप ले लेगा। हमने सिस्टम डेटाबेस सेलेक्ट की हुई थी ना, तो सी बैकअप में अगर यहीं पे रखी है तो पाथ दिया हुआ है इसको तो।
अभी तक रन हो रहा है, ये प्रोग्रेस working देख। fine. अच्छा, मैं अपने को छोड़ के उसका देख रहा हूँ, हमारा पैकेज है वो भी रन हो रहा है अभी तो। या यूज मास्टर 50%, ये देखें, ये ना प्रोग्रेस भी देख सकते हैं पैकेज में कर क्या रहा है, ठीक है। And, यहाँ इसने बैकअप भी ले लिया, डीवीसीसी चेक भी रन कर दी, ठीक है जी, ये हमारा हो गया। इसको हम स्टॉप कर देंगे। वो बताना यही चाह रहा है। Now here's what I want you to do. On my ETL tasks package, I'll drag and drop this execute package task and rename that to backup and check databases. Now double click on it to edit. On the package tab, I select my admin tasks package here on the menu and click OK. Now every time I want to check and back up my databases, I just need to run this task. Let's test it. I'll right click the task, select execute task, and here it goes. ठीक है जी, तो अब उसने क्या किया कि एग्जीक्यूट पैकेज टास्क, जो एक पैकेज के अंदर दूसरे पैकेज को कैसे रन करना, ठीक है। इसको एडमिन बैकअप टास्क का नाम दे देंगे और इसको डबल क्लिक करके, रेड का मतलब होता है ये कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, ये एरर है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम एडमिन टास्क है हमारा जी, ठीक है। ये अब हो गया हमारे पास। वो कह रहा है कि ये इस पैकेज में रहते हुए आप ये वैसे हमने किया गलत जगह, ये यहाँ नहीं बनता, इसको कंट्रोल एक्स करके इधर ले जाएं। सेम पैकेज के अंदर सेम का नाम दे रहे थे, इधर रन करना, तो इन्फॉर्मेशन तो वही रहेगी, ठीक है जी। ये वाला हम बैठे हुए हैं ईटीएल टास्क में, जब रन किया करेंगे तो एक से ज्यादा पैकेज आप मजीद रन कर सकते हैं, तो कह रहे हैं इसको रन करें। खैर ये रन हो जाएगा, आगे चलते हैं। All my databases are checked and backed up. Now let's stop the execution and we can disable this task for now. So SSIS can call entire other packages as a single task. ठीक है जी, आप मुख्तलिफ किस्म के, अभी इसको डिसेबल कर देते हैं। बताने का मकसद यह है कि एक पैकेज के अंदर एक से ज्यादा पैकेजेस कॉल कर सकते हैं बना के, वो डिपेंड करता है पूरी जो है ना लॉजिक जो है। That allows me to keep things clean and tidy and to reutilize my existing work. But it's not all, it can also call other processes and scripts as you see next. I think by now it's pretty established that I'm a huge fan of SSIS and its features. In between sources, destinations, transformations, and tasks, SSIS has over 100 objects for you to work with. And of course, third-party developers can also create their own SSIS objects as well, extending even more the offerings of the product. However, there are two wildcards on SSIS that greatly expands the capabilities of the product. The ability to execute other processes, which we're covering on this lesson, and to execute scripts, which we'll cover on the next one. With both of these tasks, we break the dependency of using just SSIS objects and can do virtually anything, including executing other programs, batch files, and PowerShell commands, starting and stopping services, unzipping files, and so on. And with the capability of executing C# or Visual Basic code, you have all the functionality of the .NET framework at your disposal. When using the execute process task, you should focus on unattended processes that don't require in-user interaction. If the process requires someone to fill out a form or click a button, and there's nobody there to do so, this task is not going to be very helpful. Let's now see how to create this in practice.
As we have executed several times the tasks related to backing up and checking the databases, I noticed that now my SQL backup directory is full of old files, see? There are 42 files and some of them are from August 1st. I actually just want backups from the last 5 days. So I created this PowerShell script that deletes files from that folder if they are older than that, as you can see here. I now want to add this script as a new
task on my SSIS admin tasks package. The first thing I need to do is to open the package, so here on my solution, I'll double-click admin-tasks.dtsx. Now I'll drag and drop the execute process task to the design area, and I'll link this new task to the backup database one, like this. Now let me rename this to clean up old backups, and I'll double-click on it to add the settings. So on the Process tab, under Executable, I'll type the path to the PowerShell command. C:\\. बोल दिया करे बीच में, ठीक है। बहरहाल बात तो समझ आ रही थी, सॉरी मैंने म्यूट कर दिया था, मुझे पता नहीं चला, वो कई बार कर्सर होता है दब जाता है, तो टच पैड है। तो हमें ये जो प्रोसेस टास्क है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो कह रहे हैं हमने स्क्रिप्ट बना लिया है। यहाँ पे पावर शेल का पाथ देगा, ये तो नाम दे दिया। अब ये जहाँ पे एग्जीक्यूटेबल पड़ी हुई है, ठीक है जी, तो वो बना रहा है। हमारे केस में जो पावर शेल की है, पावर शेल, विंडोज पावर शेल, एग्जीक्यूटेबल, ये है जी हमारी जो है ना, वो इसी को देख रहा है, आप देख रहे होंगे। तो हमारी वो जो है पावर शेल, इस जगह पे जाते हैं हम, सिस्टम 32 है और सी विंडोज, तो वो कौन सी बना रहा है, सी विंडो सिस्टम 32, ठीक है जी। तो हम यहाँ से खोल के देख लेते हैं। C:\, विंडोज़ में आपकी विंडोज़ इंस्टॉल होती है, ठीक है। बैकस्लैश के बाद होम पे आ जाए, ये पाथ जो है ना खुल रहा है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल पड़ी हुई है पावर शेल की एग्जी की, ठीक है। तो ये उठा लेते हैं पाथ और यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, और उसके बाद पावर शेल की फाइल का क्या नाम है वो देखेंगे हम। यहाँ से भी मिल जाएगा। एंड PowerShell.exe, ठीक है। एंड पे हम ये कॉपी कर दिया। तो ये एग्जीक्यूटेबल जिस सिस्टम को वो कॉल करेगा पावर शेल में रन होगा, उसके बाद Windows /system32 /Windows PowerShell /v1.0 PowerShell.exe. On the arguments, I'll type -file C:\etd course /module5 /delete old backups.ps1. Let's not forget the double quotes in the file path, as there's one. Let's not forget the double quotes in the SSIS course. ये जो माइनस फाइल है ये भी हम यहाँ लिख देते हैं नीचे ना इसके, ये है माइनस फाइल कोलन में हम जहाँ ये रखेंगे, तो इस हम फाइल को कहाँ रखेंगे, अंदर जो हमारे पास होगी, कोई भी हम लोकेशन देख लेते हैं जहाँ हम रखना चाह रहे हैं। हम बैकअप से तो वो डिलीट करेगा, तो हम रखते हैं इसको SW में रख लेते हैं, ठीक है।
तो हमारी सूरत में हो गई SW का पाथ, ठीक है जी। तो C:\SW, यहाँ पे एक डायरेक्ट नोटपैड वो बना देते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। व्यू हिडन आइटम भी दिखाऊं हमें, सॉरी एक्सटेंशन देखनी थी हिडन आइटम। फाइल नेम एक्सटेंशन हमें चाहिए, हिडन अभी नहीं। ये txt है ना, तो वो जो फाइल की एक्सटेंशन में आ रहा है वो भी देख लो। /module5/delete-old-backups.ps1. Let's not ये .ps1 रखना है हमें, ठीक है जी। पावरशेल में ps1 हो गया हमारा एक्सटेंशन इसकी। यस, अच्छा इसका नाम एग्जैक्ट वही दे देते हैं जो वो दे रहा है। वो क्या दे रहा है, डिलीट ओल्ड बैकअप्स, ताकि फ्यूचर में पता रहे। डिलीट ओल्ड बैकअप्स, ये पावरशेल की फाइल बन गई। अभी इसमें कुछ है नहीं, हमने इसको खोला, इसके अंदर जो हमने ये इसका ये पावरशेल का कोड है ये लिख देते हैं। इसमें ये कह रहा है कि इस पाथ पे जाओ और डेज बैक -1 चीज को चेक करो, करंट डेट जो है वो गेट डेट ले लो, डेट टू डिलीट करंट डेट डॉट एड डेज यहाँ से ये जो है डेज बैक -1 ले लेगा डिलीट करने का, ठीक है जी। गेट पाथ वेयर ऑब्जेक्ट, ये जी पावरशेल का है, ये आपको मिल जाती है ऐसे एग्जांपल ना नेट से, अगर आपने जो भी करना हो पावरशेल की, तकरीबन हर किस्म की। तो हम ये यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, ठीक है। इसको हम सेव कर देंगे, ये हमने इसको सेव कर दिया है और इसका पाथ देना है अब हमें। जी सर ये पावर शेल डिफरेंट सॉफ्टवेयर के लिए भी होता है, तो पावर शेल का मतलब क्या होता है? देखो, ये जो है ना CMD यूज करता था पहले, जो है माइक्रोसॉफ्ट कमांड प्रॉम्प्ट जो है, तो इसने ना ये पावर शेल उससे मिलता जुलता एक और ऐड किया, जिसमें जैसे लिनक्स में हम नहीं कमांड रन कर रहे, तो इसमें इसको फिजिबिलिटी मिल जाए कि ये OS लेवल पे मजीद कंट्रोल आ जाए इसको स्क्रिप्टिंग में, कमांड में, ठीक है। ग्राफिकली तो विंडोज बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन बैकएंड पे सारी चीजें वो CMD की बजाय उसने पावरशेल मिलता जुलता ही है, CMD के एडवांस वर्जन का है, लो कमांड प्रॉम्प्ट का। तो उसमें अपनी कमांड SQL सर्वर किसी के उसके लिए भी, जैसे अभी हम ये कर रहे हैं OS के कुछ भी टास्क देने के लिए, उसने अपना पावर शेल को यूज किया, जो इवन आपकी रजिस्ट्री कहीं भी कुछ भी चेंज करना हो कर देता है, रजिस्ट्री एंट्री दो, क्योंकि ये नॉर्मली आप रजिस्ट्री एंट्री चेंज नहीं कर सकते कमांड से, उसमें लिमिटेशंस है। इसमें इसका ये है कि अपना टूल आ गया जिसको ये यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। जी सर। तो अब ये forget आर्गुमेंट में हमने जो देना है डबल कोट में, वो हमने ये देना है जनाब, हमने यहाँ बना लिया था ये डबल कोट में, हमने डिलीट ओल्ड बैकअप्स बैक .ps1, ये कह रहा है कि कोट में रखो इसको, ये हमारा होगा जी हमारे केस में। कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहा है ना जो हम कर रहे हैं। जी the सर। double quotes in the file path, as there is a space between module and 5. ये जरा डबल चेक कर लें कि जो नाम है ना वो सेम रहना चाहिए, ये ना हो के बाद में ना फिर एरर देता है। डिलीट ओल्ड बैकअप्स, ठीक है जी, हमने ये दिया। I could configure several additional settings if I wanted. For example, I could set up input, output, and error variables to hold the results, or set up a timeout value for this task, or even change the window style to hidden so that it doesn't appear on the screen. But to be honest, the only required settings are actually the executable and the arguments, so just click OK. Now let's test this package. ठीक है, उसने बताया कि और भी सेटिंग है, लेकिन फिलहाल कीप इट सिंपल,
कि आप इसमें ना और भी आर्गूमेंट्स हैं चेंज कर सकते हैं। अब ये विंडोज खुलेगी, जब ये रन होगी तो आप चाहें तो आप हिडन भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हिडन नहीं हमें चाहिए, वो कर कह रहे हैं, देखते हैं हमारी ओके कर देते हैं इसको। तो इसमें उसने अकेले इसी टास्क को रन किया, ये देखें आपने, सिर्फ उसी को टेस्ट Let's कर click OK. Now let's test this package. I will, as usual, run the check database, run the backups, and now it's running the PowerShell script. एक मिनट रिकॉर्ड, हम ये देख Done. Let's now stop the execution and switch to the backup folder. See now how the old अब हम अपना इसमें आ जाते हैं, हम अपना रन करते हैं और हमें इसको सीक्वेंस में डालना पड़ेगा कि भाई जब भी चेक डेटाबेस हो, बैकअप हो, तो क्लीन ओल्ड बैकअप। वैसे तो हम यहाँ क्लीन टास्क भी है, लेकिन क्योंकि एग्जांपल देना मकसूद थी कि पावर शेल से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप समझे, नियरली पावर शेल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज में कुछ भी कर सकता है। ठीक है जी, तो अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं, हमने वहाँ एक दिन दिया था तो क्या ये एक दिन पुराना इस फोल्डर से डिलीट करता है? लेट्स सी, और कोई एरर देता है? बैकअप्स में हमने उसको बैकअप्स ही दिया है। ठीक है जी, पाथ जो है यही पूरा पाथ दिया जी हमने उसको। ठीक है, फिर एक दो डबल चेक करना, बैकअप्स बैकअप। ठीक है जी, अब बिस्मिल्लाह करते हैं, रन करते हैं। ये पावर शेल खुला है। डिफॉल्ट इज वाई। चले, उसने हमें पूछा है कि अभी हम इस मूड में नहीं जाते कि क्या पूछा है कि नहीं, हम ये देखते हैं कि डिलीट किया है कि नहीं, हमारा चला है कि नहीं। तो ये इसने डिलीट कर दिया है कि नहीं, डिलीट कर दिया, क्योंकि आज के दोबारा बैकअप हो गए हैं। जो 2 तारीख वाला है वो बैकअप चला गया। ठीक है जी, काशिफ क्लियर? जी सर। सर हाँ, पुराना बैकअप कैसे डिलीट हुआ, मतलब जो पहले शो एक दिन पहले वाला जो 2 दिन पुराना बैकअप था? बैकअप जो मैंने अभी उठा कर था, वो कैसे डिलीट हुआ? नहीं समझ आई कि कैसे डिलीट हुआ? नहीं, कि वो हम तो कमांड से उसको वेरीफाई जब हमने किया उसकी समझ नहीं है कि वेरीफाई कैसे हुआ। नहीं, इससे पहले बैकअप पड़े थे ना यहाँ पे जो डिलीट हो गए। 2 तारीख के बैकअप था यहाँ पे पहले। जी सर ठीक है। यहाँ पे बैकअप पड़ा था। अब मैं वो आपको दिखा देता हूँ, अगर कहीं वो मिल जाए। आपने देखा नहीं मेरे साथ, बाकियों को पता है भाई, कोई तो गवाही दे भाई। रिकॉर्डिंग है वैसे, आप देख लीजिएगा बाद में। जी सर। हैं, तो वो अब आप जो है ना, ये आप cancel करें। अगर पड़ा तो मैं दोबारा रिस्टोर करके दोबारा रन कर देता हूँ उसको, बैकअप अगर रिसाइकल बिन में नहीं है पड़ा है नहीं सर, तो। हुआ है, पहले फोल्डर भी पड़ा हुआ था एक पुराना, वो भी चला गया। नहीं, फोल्डर तो मैंने खुद अच्छा, फोल्डर भी उड़ा है। जी जी जी। बहरहाल बैकअप तो थे, वो मैंने जो उठा के दूसरी जगह जी से। सर, एक बैकअप में प्रोसेस नाम का भी फोल्डर हमने बनाया था। प्रोसेस्ड, हाँ वो भी चला गया। नहीं, प्रोसेस था फोल्डर इसमें, चलो जो भी है उड़ा दिया उसने।
नहीं वो जो है वो इसमें था भाई, CS में। मैं रिकॉर्डिंग यार आप बाद में देख लीजिएगा, वो बैकअप मैंने कॉपी किए अभी जो उठा के 2 दिन पुराने बैकअप, वो डिलीट हो गए यार। अब आप बच्चों वाली बात जी कर रहे हो सर, वैसे। जी सर, ठीक है। हैं? मैं रिकॉर्डिंग जी। स्टॉप कर देता हूँ। ये हमने Old files are deleted. From 42 files, I now have 37. हाँ, उसमें ये है कि नया बैकअप भी हुआ, जब हमने रन किया है ना तो नया बैकअप भी हुआ, इसलिए अगेन उतनी ही फाइल्स की तादाद बढ़ गई, फिर आई जो है दोबारा बैकअप भी हुआ। वो भी इस वजह से, अगर आपको ज़हन में ये समझ लें कि वो बैकअप लेगा फिर डिलीट करेगा दूसरा। ओके जी, सही है, 9 बज गए हैं। अगर क्लास मजीद लेना चाह रहे हैं ठीक है, नहीं है तो मैं बंद कर देता हूँ। मैं दे सर सकता हूँ थोड़ा। एक क्वेश्चन था। हाँ जी, पूछें। जिस तरह फाइल And the backups from the beginning of shell to delete all, and as you of the .NET framework. Continue our discussion on how to increase the power of SSS beyond just tasks. Let's talk a little bit about the script task. It allows you to execute .NET code inside your package, which increases considerably the flexibility of the product. You can choose between C# and Visual Basic, according to your development experience and the comfort level you have with each one. That being said, you'll be more likely to find code samples for C# available on the internet. Although it's called the script task, it's actually compiled code on the latest versions of SSIS. There's also something called the script component on the data flow, which allows you to do scripting for importing, exporting, or transforming data. They're actually pretty similar, so if you learn how to work with the script task, the script components will be very easy as well. Now let's see how to create one in practice. Okay, so my colleague Dave from the operations team asked if it was possible for me to write on the event log every time that I execute the backup package. The reason is so that he can monitor the success of the backup activities from our company's monitoring system, which is System Center Operations Manager. Let's make this happen. I'll start here on the admin tasks package. Then I'll drag and drop the script task to the design area, link that to the execute process task that we recently created, the clean up old backups here, and rename this one to write to application log. Then I'll double click on it to configure. I have literally nothing to change on this screen. I want to use C# as the language, and I want to keep the entry point as main, which is the standard entry point for the C# code. This code won't communicate anything to or from the package, so I don't need to configure any variables either. What I need to do is to click here on the Edit Script button to change the script. It will open a new window where I can change my code. As we saw a minute ago, the entry point is main, so I just need to point to the portion of the code that says public void main. It literally has a comment, to do, add your code here, so it cannot be easier than that. Okay, so of course this is not a course on C#, although the Pluralsight library has dozens of C# trainings for you to choose from. So to make your life easier, I just created a file with the code snippet that we are going to need here. चलें ये फाइल भी अब हम लिख लेते हैं। स्क्रिप्ट स्निपेट इसी में रख देते हैं। यूजिंग इवेंट लॉग इवेंट, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम की इवेंट लॉग का पता है कि बताऊं आपको? खैर अभी लिख लें कोड, फिर मैं बताता हूँ आपको। Continue our discussion on how to increase the power of SSS beyond. As we have executed, you'll be more likely to find code samples very easy as well. Just so that you understand what this
कोशिश करें जो आपका केस है ना वो सेम होना चाहिए, क्योंकि ना ये विंडोज़ में तो चल जाता है लेकिन ये है कि कई जगहों पे फिर प्रॉब्लम करता है। बेहतर है कि केस का ख्याल ख्याल रखें। इवेंट लॉग डॉट राइट। अब तो आप चैट जीपीटी से कहेंगे तो वो आपको जो कोड है वो लिख के दे देगा। ये जो है अपना उसने डिलीट कर दिया तो वही यूज़ कर रहा है। तो उसके बाद है ठीक। यहाँ पे स्क्रिप्ट नज़र आ रहा है जी। स्क्रिप्ट टास्क ये रहा। अच्छा, जब यहाँ आप क्लिक करते हैं, ये नीचे बताता है फंक्शन दैट आर नॉट प्रोवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन सर्विस, फॉर एग्जांपल मूव प्रोसेसिंग। तो हम इसको ले लेते हैं और यहाँ से इसको प्रेसिडेंस को मैच कर देते हैं। इस पर डबल क्लिक कर दें। हमारे पास 2019 बता रहा है डिफ़ॉल्ट। मेन है और स्क्रिप्ट टास्क। यहाँ पे हमने जाना है मेन। ये कहाँ से गया देख लेते हैं इसका, क्योंकि What I need to do is to click here on the Edit Script button. एडिट, सॉरी, नीचे देखेंगे। सी शार्प का एडिटर खोल रहा है स्क्रिप्ट को। The goal, the entry point is main, so I just need to point to the portion of the code that says public void main. It literally has a comment to do, add your code here, so it cannot be easier than that. Okay, so of course this is not a course on C#, although the Pluralsight library has dozens of C# trainings for you to choose from. So to make your life easier, I just created a file with the code snippet that we are going to need here. Just so that you understand what this code does. It creates a new entry on the application event log with the type information. Other options would be warning or error, for example, with the event ID 101, and it also has a very professional message to Dave on it. So let me copy this and paste that to the script. I now get an error as C# cannot recognize what event log is. But that's not a problem. Visual Studio is actually super smart and already gives me the fix for it. If I mouse over here, I can see the option to add the system.diagnostics namespace. If I select this option and go here at the top,
I now can see the code using system.diagnostics, which adds the ये, अगर थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग है तो नेम स्पेस खुद ब खुद ले आएगा। अब वो हमारा टारगेट नहीं है, तो ये इवेंट लॉग पे हम करते हैं। तो यूज सिस्टम डायग्नोस्टिक्स, अप्लाई। वो कह रहा है कि ये ऐड कर दो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें डिफरेंट है। ठीक है, तो ऊपर ये नेम स्पेस आ जाएगी इसकी, कहाँ गई है? ठीक है, अब एरर चली गई है। उसके बाद हम फिर वापस जाते हैं, वो उसने भी यही reference that fixed my problem below. I'm now good to go, so I'll just close this dialog box for the script task, and run it. हम इसको हम भी क्लोज कर देते हैं, लेकिन यहाँ से आके ये क्लोज किया, ओके कर दिया। थोड़ा टाइम लेगा, विजुअल स्टूडियो इज बिजी, लगे रहना। I don't want to run all the backups and check databases again, so I'll just execute this task for now. Done. It was actually super fast, as this is a light script. Now let's open the event viewer, go to the application इवेंट वेयर के बारे में पता है ना आपको क्या होता है? ये जितनी ऑपरेटिंग सिस्टम की है लॉग वो दिखाता है आपको। log, and there it is, my event 101 एप्लीकेशन just लॉग made में to the ऑपरेटिंग top. सिस्टम में लिख रहा If, है। however, Dave was an old school guy that preferred to get things by email, I could do that as well. Let's talk about that. जी, हमारा ये हो गया। अब हम इसको इवेंट व्यूअर आपको खोलना है, राइट क्लिक करके यहाँ से इवेंट को स्टार्ट पे लिखा है तो इवेंट व्यूअर खोल। इवेंट व्यूअर के बारे में पता है ना काशिफ आपको क्या होता है? ये हसीब, हसान, सर जो इवेंट्स चल रहे हैं वो शो कर रहा होता है। यानी आपको नहीं पता। अब हसीब आपको पता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी एरर, इवन सिक्वल सर्वर, अगर आप किसी वजह से आपका लॉगिन पे वो स्टार्ट नहीं हो रही सर्विस सिक्वल सर्वर की, तो उसकी भी लॉग यहाँ आके आप सिस्टम में देख रहे होते हो। ठीक है, तो अभी ये ना ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ भी हो रहा है, उसकी जो है यहाँ पे लॉग आती है, वो थ्रो करता है। हम अपने बैकअप की जो है ना इवेंट जो एरर है वो यहाँ थ्रो कराना चाह रहे हैं, एक तरह की अलर्ट लॉग। ठीक है, इवेंट स्लो हुआ पड़ा, टाइम लेगा लोड कर। कैंसिल। सर ये एक दो दोबारा बता दें इवेंट व्यू का। इवेंट व्यूअर जो है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कुछ भी हो रहा है, कोई एप्लीकेशन रन हो रही है तो उसकी लॉग इसमें आ जाएगी कि भी कुछ भी रन हो रहा है। यानी अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, अगर इवन स्टार्ट स्टॉप हुआ है, कुछ भी हुआ, तो तकरीबन मिलती जुलती जितनी लॉग है ना वो ज़ाहिर है, अगर एप्लीकेशन की उसमें सपोर्ट दी होती है डिबग करने के लिए, सिक्योरिटी वाइज कुछ भी आ रहे हैं अलर्ट तो वो इसमें आ रहे हैं। चाहे सिक्वल सर्वर की अपनी लॉग नहीं होती, इस तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम पे होती है। मेनली सिस्टम और एप्लीकेशन को हम देखते हैं ज़्यादा। तो ये मशीन हमारी स्लो है तो वो टाइम ले रही है, अभी लाई नहीं आने जैसे। ऑपरेटिंग सिस्टम लॉग है, उसके अंदर जो भी रन हो रहा है उसकी लॉग है। हसीब, मेरा क्वेश्चन आपसे, आपको ये पता है पहले इवेंट व्यूअर क्या होता है? हसान को तो शायद नहीं पता होगा, आपका थोड़ा है ना हो। आपका माइक म्यूट है। चलें, ये तो है ना, अभी तो लास्ट में ये जैसे एसवीओ द डेटाबेस इंजन अटैच्ड डेटाबेस,
ठीक है, तो इस किस्म की चीजें ये बता रहा होता है, ये जो भी हो रहा है आपके। हम अपना इवेंट जो है ना इसका रन करके इसको थ्रो करते हैं, इसमें जाता है कि नहीं ये देखते हैं इसको। राइट क्लिक, एग्जीक्यूट टास्क। हम चाह रहे हैं हमारा जब भी बैकअप हो तो उसका जो है वो तो एक इवेंट व्यूअर में उसकी इंफॉर्मेशन जो है और मकसद उसका यहाँ ये बताना है कि यू कैन राइट इवन ऑपरेटिंग सिस्टम इवेंट लॉग। जब भी आप इसके लिए नहीं, वो आप किसी पे भी पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं इवेंट लॉग में थ्रो कराना। कि भी अगर एरर आएगी तो डायरेक्ट वो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप चेक कर सकते हैं कि भी ये एरर आई। ये कंप्लीट हो गया है, देख लेते हैं इसका। पैकेज एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो इसको रिफ्रेश करेंगे और ये यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे दोबारा करते हैं। देखें ये आगे ना जो है यही वाली हमने जो रन किया 101 इवेंट आईडी 101 तो नहीं, उसको मिला फाइन। हे डेव ये लिखा था ना हमने कि हम अपने तौर पे एक इवेंट आईडी जी दे सर रहे हैं। यही लिखा था। ठीक है, तो हम यू कैन थ्रो इट। वो लेटर आप ये है कि एक अलहदा बहस है कि आप कहो कि जी ये सी शार्प का कोड हमें सिखाओ, तो वो फिर